very good morning to everyone. I, student of DAV Media School, welcome you all to the Vibrant India series, episode 47. I also welcome all our viewers who are watching us live on Facebook. Vibrant India series is an initiative of DAV Media School for celebrating 75 years of India's independence. This series will be a year-long exercise. As part of this series, we invite inspiring personalities for online talk, interview, and interaction with our students. The invited personality for this series are from all walks of life and from all parts of the country. And today, our special guest is Mr. Satish Saxena, an engineer, poet, blogger, athlete, and a persona of motivation. We welcome you, sir. I would like to take a moment and introduce Telemetropolitan Education to our viewers. Telemetropolitan Education is an E-grade premier educational institute affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University, New Delhi, and approved by the Bar Council of India. The institute offers BBA, BA LLB, and BB LLB and BA GMC programs. DMA believes in imparting world-class education to its students while training them to develop and enhance their skills. This education and training enables them in taking up challenges on the industry and creating a space for themselves with their competence and vigor. DMA Media School is one of the most promising media institutes in the country. It offers BA in journalism and mass communication. It is recognized as a school focused on the growth of its faculty and students through academic and co-curricular activities. Major flagship events and initiatives of the school include BG Vogi's lecture series, peer-to-peer FDP, International Film Festival CFI, International Conference ICANN, and Vritika Convention of Media Students. And newly added in the list is VIS, Vibrant India series. Now, I would like to invite Siksha to introduce our guest of the morning. Over to you, Siksha. Thank you, Khushi. It is our privilege to introduce to you the personality of episode 47 of the VIS. Guest of the morning has many feathers in his cap. Mr. Satish Saxena. Sir has done diploma in civil engineering. He retired as a civil engineer from CPWD. From 2005, Sir started writing a blog called Mere Geet. This blog has more than 330 poems and write-ups. A book called Mere Geet was published in 2012. The main focus of this book is voice against corruption and all the ill practices of the society, as well as a stance on the pitfalls of the political system, a critical viewpoint on the trending concept of nuclear families. After retirement, Sir took an oath to fight against the turmoil of various illness which his body was undergoing. At the age of 61, Sir decided to participate in sports and begin running marathons. In the last 6 years, Sir has been part of 59 half marathons. He believes because of this participation, his body is now free from diseases. He has a personal record of covering a distance of 21 kilometers in 2 minutes and 16 seconds. Sir has transformed his body by his determinations. Sir also participated in 100 Day of Running 2021 World Competition at the age of 67. In this competition, Sir covered 1,849 kilometers in 100 days. In this competition, Sir not only grabbed first position in his category, but stood at 88th rank of 13,068 participants. Sir is currently writing a book called Health Blunders, in which he talks about how in this materialistic world, man keeps running after money. And after hoarding this money for 60 years, he started using this money to give all kind of comfort to this body. And the outcome of this is that body along with brain and vision starts setting and comfort zone and starts getting old. Some other areas of interest of Sir are photography, traveling, motivational speaker, social worker, fight against evils of the society, helping the needy, etc., which makes Sir as unique as he is. I now request the technical team to show some glimpses of his life.
Thank you so much, sir, for joining us today. It is indeed an honor to host you. I now request Dr. Susmita Bala, Head TME Media School, to welcome the guest. Thank you, Shiksha. Welcome everybody in episode 47 of Vibrant India series. We launched this digital program on August 9 in 2021 on the anniversary of Quit India movement. This is an initiative of DME Media School, Delhi Metropolitan Education. Vibrant India series is an online series to get inspiration from distinguished personalities. This program has been conceptualized and created by Professor Ambrish Saxena. Vibrant India series is a tribute to all those people who have made supreme sacrifices for the independence of our motherland. India will be completing 75 years of independence this year. We started celebrations last year only. This program, VIS, has been launched as a part of these celebrations. 8 personalities from the Defense Forces have participated in VIS till date. These personalities belong to the Indian Army, Air Force, and BSF. 5 personalities from the education sector comprising education planning, teaching, and research have participated in VIS. 4 personalities from the journalism, broadcasting, and entertainment sector have joined the VIS. 6 personalities from the social sector. These include Dr. Monisha Behel, Dr. Mridula Tandon, Dr. Midula Seth, Ms. Tripti S. Singhal, Ms. Vibha Lakhera, Ms. Bhavrin Kandari, Padma Shri Jitendra Singh Shanti participated in VIS. 5 personalities belong to art, theatre, and literature. These include Dr. Sachidanand Joshi, Mr. Arvind Gaur, Mr. Lakshmi Shankar Bajpayee, Mr. Aditya Arya, and Ms. Kajal Suri. From the field of law and human rights, we have with us Professor Manoj Kumar Sinha and Ms. Jyotika Kalra. 13 women have participated in 45 episodes of VIS. I have already mentioned about 6 women working in the social sector, 1 in the Air Force, 1 in human rights, and 1 in theatre. I also want to make a mention of Ms. Indrani Singh, a pilot, Ms. Pallavi Fauzdar, an adventure motorcyclist, Ms. Sachi Soni, a mountaineer, Ms. Saloni Sacheti, an entrepreneur. 3 police officers have also participated in VIS. These include 2 former IPS officers. 3 senior IAS officers have also graced the VIS. These include Mr. Ashok Pradhan, Mr. Bimal Julka, and Mr. DJ Narayan. From the other fields, we have with us Mr. S.P. Rawal, Mr. Augustine Valet, Sufi Sayyid Ajmal Nizami, Mr. Balindu Sharma Dadhichi. Today, in episode 47, we have with us Mr. Satish Saxena जी. इन्होंने आफ्टर 61 years आफ्टर रिटायरमेंट इतना कुछ किया है जो सबके लिए बहुत बहुत एनर्जेटिक है. सो एनर्जेटिक पर्सन, एथलीट, कविता सृजनकर्ता और बहुत कुछ. तो आज हम सुनेंगे सक्सेना जी को. आपका स्वागत है मिस्टर सतीश सक्सेना in this episode. Thank you. Thanks to all of you. Thank you so much, ma'am, for listening out the galaxy of experts we have hosted till now in VIS. I now request Dr. Ambrish Saxena, Dean DME Media School and originator and ideator of VIS, to take the program forward. Over to you, sir. Thank you, Shiksha.
We all know that we have entered in this 47th episode of VIS. We planned it in 2021. And when we planned it, obviously, it appears a gigantic task when we decided that we will be doing 75 episodes of this program. Also for the reason, because we conceived this program a little bit different. It is completely an unconventional program. Until date, whatever television channels and all we have been watching since longer, nobody would have ever seen such kind of program wherein we are inviting the people, the people who really inspire, and those people are narrating their whole journey. I talked to so many people to be part of this program, and many were apprehensive as to how we can narrate our own story. But then the whole concept was this, wherein whenever something is coming from the horse's mouth, one who would have done something, and that person is narrating as to what he or she has done and what kind of problems and challenges surfaced while he or she was trying to do that, and how he or she would have overcome. That's the real crux, because we all try in our lives doing various things, but we stop somewhere or the other at some step or the other because we feel we will not be able to complete it. So one who knows how to overcome the challenges and one who knows no bounds. So we were inclined to invite those kind of people. And also we do not believe in the whole concept of celebrity culture, wherein any such person is to be invited who is very prominent, everybody knows about him, lot of interviews and everything would have been there in the media. I was in fact right from the beginning was looking for those people who are ordinary people, but then with their vigor, with their spirit, with their dedication, with their passion, they have made a mark. That is what really inspires. So till date, we have been successful in finding such people, and there are people who are always ready to cooperate and to understand that this is a program which is actually inspiring the people on whose shoulder the future of this country lies. The people who are in the age bracket of 19 years or 20 years or 21 years, they are the future of this country. So if they understand how to work, what all is to be done, not only for their growth, but for the society and for the country. So we all take inspiration from one another. And it's not that only young people need to take the inspiration. Even the people of my age can take inspiration, as like Satish Saxena ji is a live example of this as to how the inspiration can be brought to the fore to the use of anybody. So that's basically the concept. As far as the format of the program is concerned, after this initial segment, we will move to another segment wherein we request normally to the guest to narrate his or her journey. तो सतीश सक्सेना जी, जैसा आपसे मेरी बात भी हुई इस बारे में कि ये जो इसके बाद वाला सेगमेंट है, वहां पर हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। आपकी जर्नी जो आपके हिसाब से जब भी शुरू हुई, हमारे हिसाब से वो आपकी जर्नी आपके 60 साल के बाद शुरू हुई. सो वी विल बी फोकसिंग ऑन दैट ओनली बिकॉज इट इज देयर वेयर द इंस्पिरेशन लाइज. आपने कैसे ये तय किया कि आपको लाइफ में अब क्या करना है और वो कहाँ से आई वो स्पिरिट, फिर आपने कैसे उन चीजों को किया, किस किस तरह की चुनौतियां आपके रास्ते में आई, उन चुनौतियों का आपने मुकाबला कैसे किया, कैसे अपना रास्ता बनाया और उस पूरी जर्नी में आपको क्या क्या गेन हुआ, क्योंकि जो आपका गेन है वही हम सबका इंस्पिरेशन है. वो उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा, थर्ड सेगमेंट में, आई विल बी पुटिंग अप सर्टेन क्वेश्चंस टू यू based on whatever you would have narrated. Because it simply will be an extension of what you would have said in your segment. And in the final segment, there will be students who will be putting up some questions, because there are so many students. Because normally what we do whenever we invite some distinguished person, we share the profile of that person with all the students, so that the students come prepared with a mindset to whom they are listening to. So they are prepared with all the questions with them. So without further delay, I welcome Satish Saxena ji to you in this program. और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यहाँ से अब आप आगे की बागडोर संभालें इस सत्र की और हमें वो सब बताएं जो हम सब सुनना चाहते हैं.
डॉक्टर अमरीश प्रणाम आप सबको। और डीएमई मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने हमें मौका दिया। आपको प्रणाम कर रहा हूं। इस समय म्यूनिक से, जर्मनी में हूं मैं इन दिनों। 3 महीने के लिए मैं यहाँ हूँ। 3 महीने बाद इंडिया वापस रहूँगा। जो चीज़ें रही हैं वो मेरे साथ, जो घटनाएं घटी हैं, मैं आपको बस समझाने की कोशिश करूँगा कि शायद बच्चों के कुछ काम आ सके। जैसा कि एज यूजुअल होता है, मैं सेंट्रल पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर था और सारी फैसिलिटी थी मेरे पास। 50 साल के आसपास की उम्र में जो मेरी हालत थी वो मैं जरूर बताना चाहूँगा आपके लिए। मैं कम से कम 4 या 5 तरीके की बीमारियां शरीर के अंदर पाले हुए था एट द एज ऑफ 50 साल की उम्र में। पेट बहुत बुरी तरीके से बढ़ा हुआ था। वजन आज से, जो इस समय वजन है मेरा, उससे 16 किलो ज्यादा था उन दिनों। और बीपी कई बार जब चेक करता था तो हाई बीपी, कई बार नॉर्मल भी होता था, बट अक्सर बीपी बढ़ा हुआ मिलता था। डायबिटीज बॉर्डर केसेस था। खांसी का बचपन से बीमार था। खांसी बचपन, करीब करीब 14, 15, 17 साल की एज से ही कफ की कुछ प्रॉब्लम थी, तो खांसता तो अक्सर था ही था। शायद ही कोई ऐसे जाड़े के दिन जाते होंगे जब मेरी खांसी मुझे खांसना ना पड़े, ऐसा नहीं होता था। कफ भी क्रिएट होता था और जो बहुत सारी शरीर में समस्याएं थी वो सब मुझे 50-55 की एज में दिखने लग गई थी। मगर जो मेरी कमियां थी वो ये, जो आम इंसानों की कमियां होती हैं वो वही थी, जिसमें कि कभी वॉक ना करना। अब तो लोग काफी वॉक करने जाने लगे हैं, पहले मैंने कभी लाइफ में वॉक नहीं किया था। और नाम के लिए भी नहीं, ये भी नहीं कि दिखाने के लिए ही पार्क में चले जाओ अपने मन को तसल्ली देने के लिए कि अब हम वॉक कर रहे हैं तो हम स्वस्थ हो जाएंगे तो वॉक भी नहीं करता था। और सीढ़ियां चढ़ते समय, जब मैं रिटायर जिस दिन हो रहा था 2014 में, रिटायरमेंट के टाइम में सेकेंड फ्लोर पे ऑफिस था। सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कुलीग के साथ फर्स्ट फ्लोर पर ही सांस फूलने लगी थी। ऐसा नहीं था कि ये पहली बार सांस फूली थी, मगर उस दिन चूंकि मेरा आखिरी दिन था रिटायरमेंट का, तो लास्ट डे मेरी सर्विस लाइफ का, तो मुझे लगा कि ये कुछ गड़बड़ है। तो ज्यादा शायद अपनी तरफ कॉशन था, ध्यान था, तो पहले फ्लोर पे ही सांस फूली। जबकि मुझे ध्यान आया कि मैं अक्सर फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ते हुए रुकता था क्योंकि हाँफ रहा था। सेकेंड फ्लोर पर जैसे जब पहुंचे तो रूम जहाँ की मेरी लोगों ने अरेंजमेंट कर रखा था स्वागत का, आखिरी स्वागत समारोह का, उसमें घुसने से पहले मैंने दरवाजे पर रुक करके थोड़ी देर अपनी सांसें व्यवस्थित की। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि ये मुझे हो क्या रहा है। शायद वो इम्पैक्ट था कि मैं उस दिन अपने आप को ध्यान ज्यादा दे पा रहा था मॉर्निंग से। वो एक अजीब दिन होता है रिटायरमेंट का, जब इंसान सोचता है कि मैं एक्टिव लाइफ से घर वापस जाऊंगा। और मेरे वहाँ कुलीग वगैरह थे। जब मेरा नंबर आया कि आप बोलना शुरू करें, कुछ कहिए, तो मैंने जो पहली बात कही थी वो ये कि शायद आखिरी बार आप लोगों से मीटिंग मुलाकात हो रही है, पता नहीं अगले साल भेंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो लोगों ने पूछा ऐसा क्यों कह रहे हो। मैंने कहा था कि जो मेरी स्थिति आज सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मुझे पहली बार फील हुआ कि मैं तो हाँफ रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं जी पाऊंगा। हाँफने का मतलब सीधा सीधा है हृदय के ऊपर जोर पड़ रहा है, हार्ट पर प्रेशर पड़ रहा है। तोंद ऑलरेडी निकली हुई थी, झुर्रियां चेहरे पे पड़ी हुई थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे बाकायदा झुर्रियां थी। मेरे पास वो फोटोग्राफ्स हैं। आई एम सॉरी कि मैं अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके स्टूडेंट्स को देने को तैयार हूँ, वो मोटापे की फेसेस और आज का चेंज जो मैंने अपने आप में किया। रिटायरमेंट के बाद मैं घर जब आया तो मन बहुत उद्विग्न था, काफी परेशान था और सोच रहा था कि मैंने किया क्या है लाइफ में पूरे दिन। और जैसे कि और साथी, उसमें से करीब मेरे 10 साथी ऐसे थे जो मेरा अच्छा बड़ा सर्कल था, 30-40 दोस्तों का, क्लोज फ्रेंड्स का, उनमें 8-10 तो 60 से पहले ही जा चुके थे। तो वो सारी चीजें गड़बड़ हो रही थी ब्रेन में, और दिमाग में आया था कि इस तरीके से मेरी जिंदगी ज्यादा दिन की अब नहीं बचेगी। तो सोचा कि क्या करना चाहिए। 2-4 दोस्तों ने सलाह ली, जो मेरी अपनी नॉलेज थी वो, प्लस जो मैंने नेट पर से स्टडी करना शुरू किया कि ओल्ड एज में किस तरीके से अपने आप को सरवाइव करने की कोशिश करें।
उन्हीं दिनों मेरे पास एक ऑफर था मेरे एक मित्र की तरफ से कि आपको दिल्ली मेट्रो के अंदर जॉब ऑफर है और आपको इजीली मिल जाएगी, जो मेरा रिकॉर्ड था गवर्नमेंट का उस हिसाब को देखते हुए। और उन दिनों सैलरी मेरी रिटायरमेंट के टाइम में करीब 1,10,000 थी, तो 55,000 रुपया मुझे उसकी सैलरी, फिक्स सैलरी दी जाएगी अगले 5 साल तक, एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जॉब था। तो मैंने अब मना कर दिया कि मैं बचूंगा ही नहीं तो जॉब को लेके क्या करूंगा, पैसे का कोई इलाज नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जीना, मेरी लाइफ जो है सिर्फ अगले 2 साल तक मुश्किल से जी पाऊंगा। इन स्थितियों में मैंने अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की। जो मेरे बहुत क्लोज मित्र थे उन्होंने मुझे हिम्मत बंधाई और कहा कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, कि वो शायद कहीं ना कहीं मुझसे लगता था कि मैं ज्यादा समझदार हूँ या ज्यादा बुक्स पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ता रहता हूँ, तो उन्हें लगता था कि आपको कुछ नहीं होगा, आप ऐसे ही सोच रहे हो। बहरहाल मैंने वॉकिंग स्टार्ट किया। उन्हीं दिनों मेरी बहू विधि, जिसके पास मैं इन दिनों रुका हुआ हूँ, ये लड़की नोकिया में डायरेक्टर थी यहीं पर, इसने मुझे कहा कि मैं आपको चाहती हूँ कि आप रनिंग स्टार्ट करें। तो मैंने कहा रनिंग, जिस आदमी ने कभी जिंदगी में 50 मीटर रनिंग ना की हो वो रनिंग कैसे स्टार्ट करेगा? तो उसने कहा नहीं, आप वॉक करके रन कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ सुबह का 8 बज रहा है, मैं चाय पी रहा हूँ तो बुरा मत मानिएगा। तो मैंने वहां से रनिंग स्टार्ट करने, विधि ने क्या किया कि मेरा एक फॉर्म भरवा दिया, खुद ही ऑनलाइन पैसे डिपॉजिट कर दिए और मेरे आगे रख दिया कि पापा ये आपको आज से 2.5 महीने बाद हाफ मैराथन दौड़ना है। तो मैं एक साथ झल्ला गया। मैंने कहा जो आदमी 50 मीटर कभी डीटीसी की बस में नहीं दौड़ के चढ़ पाया, उससे तुम ये उम्मीद करती हो कि मैं हाफ मैराथन 21 किलोमीटर दौड़ूंगा नॉन स्टॉप? तो उसने कहा कि नहीं, वहां पर 21 किलोमीटर में ये एक बंदिश नहीं है कि आप दौड़े जरूर, आप वॉक और रन कर सकते हैं। मैंने कहा रन तो फिर भी आ रहा है ना, तो रन मैं कैसे करूंगा, और अगर वॉक करूंगा तो सबसे पीछे रहूंगा मैं। कितने लोग वहां दौड़ेंगे? पता चला कि करीब 6,000 लोग। मैंने कहा सबसे पीछे मैं रह जाऊंगा। मगर उसने हिम्मत बनाई, कहती आप वॉक तो शुरू करो। मैंने उसके बाद से वॉक करना शुरू किया, और वॉक नॉर्मल तरीके से शुरू ना करके वॉक का सिस्टम पढ़ना, स्टडी करना शुरू किया। तो उसमें पता चला कि जो लोग सैकड़ों रोज वॉक कर रहे हैं मेरे मोहल्ले की, ये सब वॉक गलत कर रहे हैं, इनको वॉक करना ही नहीं आता है। वो मैंने लर्न किया और मैंने वॉकिंग पर प्रेशर दिया, अपने आप को समझाने की कोशिश की बार बार कि तुम कर सकते हो, तुम्हें करना चाहिए। और मैंने बहुत जल्दी ही, वो 1.5 महीना खैर मेरा स्ट्रगल पीरियड था, जिसमें मैंने वॉक किया, रन किया, वॉक किया, रन किया। थक जाता था तो पैदल चलना शुरू कर देता था, फिर दौड़ता था। मगर मैंने जिद कर ली थी कि अब ये बच्चों ने मेरी ऊपर डाल दिया है तो ये मुझे करना चाहिए। करीब 1 महीना जब रह गया तो मैंने उसको फेसबुक पर और अपनी मीडिया में अनाउंस कर दिया, ब्लॉग पर, कि मैं हाफ मैराथन दौड़ने जा रहा हूँ। उसके पीछे लॉजिक ये नहीं था कि मेरे अंदर बहुत हिम्मत आ गई थी, हिम्मत नहीं थी, घबरा रहा था। मगर मैंने अनाउंस इसलिए कर दिया था कि कई बार आलस आ जाता था कि अरे छोड़ो आज वॉक कम करेंगे, या थक जाते थे तो घर आ जाते थे वापस लौट के। तो ये बताने के लिए कि सब दोस्तों को पता चल जाए कि मैं रन कर रहा हूं, और वो भी हाफ मैराथन, जिससे कि लोग मेरे ऊपर तालियां बजाएं मजाक उड़ाते हुए कि तुम नहीं कर सकते। ये जिद थी और मैंने ये डाल दिया हिम्मत करके। सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए था, क्योंकि आज तक ऐसा मौका पूरी सर्विस लाइफ में नहीं गुजरा जब मुझे रिगार्ड ना मिली हो। ईश्वर कृपा से ऐसे काम नहीं किए कि डिसरिगार्ड लोग करें या दोस्त लोग करें। तो उस रिगार्ड को खतरे में डाल दिया मैंने अनाउंस करके कि मैं हाफ मैराथन दौड़ूंगा, जो मेरे दूर दूर तक मेरे नॉर्मल मुहावरा यूज करूं तो फरिश्तों के बस का नहीं था। अनाउंस करने के बाद मैं बंध गया, अपने आप को लगा कि मैं बंध गया हूं, अब मुझे करना ही पड़ेगा, मरो या जियो करो। तो डू और डाई की सिचुएशन में मेरी और हिम्मत आई और मैंने वो स्टार्ट किया। 15 सितंबर या 13 सितंबर का टाइम था जब मैंने MCM गुड़गांव में जाकर के रनिंग स्टार्ट की। और मेरा बेटा हिम्मत बंधाने को और मेरी बहू मेरे साथ थी विधि, और दोनों, विधि दौड़ रही थी और बेटा साइकिल पे था मेरे साथ देने के लिए, मेरी हिम्मत बंधाने के लिए।
11 किलोमीटर पहुंचते पहुंचते जहां से यू टर्न लेना था, मेरी हालत खराब हो चुकी थी। आधे से ज्यादा मैंने वॉक किया था और रन बहुत कम था, नाम मात्र के लिए था, क्योंकि वजन उतना ही था, वजन में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वापस में लौटते समय मैंने अपने आप को बार बार चैलेंज दिया कि सतीश, तुम कर सकते हो, जब और सीनियर लोग दौड़ रहे हैं तो तुम भी कर सकते हो, तो हिम्मत रखो, आम इंसानों में शामिल मत हो, तुम आम आदमी नहीं हो। बार बार अपने को कहा कि तुम आम आदमी नहीं हो, तुम एक्सेप्शनल अगर हो तो करके दिखाओ। और इस धारणा को लेकर के मेरी और हिम्मत आई, थकान पता नहीं कहाँ गायब हो गई, और मैंने वो पूरा 21 किलोमीटर का रन अप उनके मिनिमम टाइम फ्रेम में 3 घंटे से कम में पूरा करना था, ये कंपलसरी था रनर्स के लिए। मैंने 3 घंटे में 2 मिनट पहले मैंने वो पूरा कर लिया। और बेटा मेरे साथ साथ हिम्मत बंधा रहा था, पापा आप कर लोगे, प्लीज आप दौड़ते रहो, आप घबराओ मत, अब देखो ड्रम सुनाई पड़ रहे हैं, आवाज सुनाई पड़ रही है, वहीं पे क्लोजिंग है, अब आप बिल्कुल पास आ गए। और उस समय मेरे पैर कांप रहे थे हिम्मत के कारण, मगर मैं गिरा नहीं, यही सरप्राइज था, और मैंने वो पूरा कर लिया रन। उसके बाद मैं जब चेयर बैठा तो मुझसे उठा नहीं गया। 10 मिनट तक तो मैं बैठा ही रहा, 10 मिनट बाद बेटे ने उठाने की कोशिश की तो उठ नहीं पाया, तो दोनों ने सपोर्ट किया, सहारा दिया, तो लड़खड़ा रहे थे, पैर कांप रहे थे। उस स्थिति में मैंने स्टार्ट किया, मगर उस दिन मेरी लाइफ में उसी दिन से बदलाव शुरू हो गया। मैंने कहा कि जब मैं इतना कर सकता हूं तो अब मैं इन रनर्स के साथ भी दौड़ के दिखाऊंगा, अभी मैं ये चैलेंज ही लूंगा। कहीं ना कहीं मन में फीलिंग भी थी अपमानित होने जैसी, कि ऐसा लग रहा था कि मैं सबसे लास्ट में पहुंचा था। शायद मेरे पीछे 10-15 ही बुढ़े थे जो मेरे जैसे कोशिश कर रहे थे, दौड़ रहे थे, और मैंने पूरा कर लिया। उसके बाद से मैंने पीछे मुड़ के आज तक नहीं देखा। मैंने वॉक सीखा, मैंने रनिंग सीखी, रनिंग को किस तरीके से करना वो सीखा, रनिंग में हांफना नहीं है किसी हालत में ये सीखा, वॉक करते समय भी हांफना नहीं है। अगर आप हांफते हुए दौड़ रहे हैं या वॉक कर रहे हैं तो आप ना तो वॉक कर रहे हैं, ना रनिंग कर रहे हैं, ना इनका फायदा उठा पाएंगे, उससे उल्टा नुकसान होता है। कितने लोग इंडिया में, आप शायद आपके लिए डेटा बता दूं मैं आपके लिए, कम से कम इंडिया में हर साल 2 या 3 रनर की डेथ हो जाती है दौड़ते हुए। इससे घबराने की बात नहीं है, उनको दौड़ना ही नहीं आता है, वो सिर्फ जोश में दौड़ रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि बॉडी में कितने उथल पुथल हो रही है। इस समय 21 किलोमीटर की रनिंग आप करने जा रहे हैं, लगातार 3 घंटे 2.5 घंटे लगातार कंटिन्यूस नॉन स्टॉप दौड़ना है। उन स्थिति में सारे शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग हिल रहा होता है, वाइब्रेशन हो रही होती है। बॉडी के जो आपके बीमार अंग हैं वो ब्रेक हो सकते हैं, टूट सकते हैं, खराब हो सकते हैं, आपको वहीं एट द स्पॉट डेथ हो सकती है। रनिंग करने से पहले हर हालत में रनिंग को लर्न करो कि लर्न का प्रोसेस क्या है, और प्रोसेस सीधा सीधा है जो एक आम आदमी सोच सकता है। हम लोग जब वॉक कर, पूरे मोहल्ले में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे आपने वॉक करते रोज देखते नहीं होंगे, और आप मोहल्ले में अक्सर ये डेथ के खबर सुनते हो, उन्हें हार्ट अटैक हो गया और डेथ हो गई, और वो रनिंग वॉक कर रहे थे पिछले 20 साल से। उसका रीजन क्या है कि इसका मतलब वॉक से फायदा नहीं हो रहा आपको फायदा तभी होगा जब आप वॉकिंग करना सीखें। वॉक करने का तरीका ये है कि हांफते हुए नहीं दौड़ना है। अगर हांफ रहे हैं तो आपका शरीर कहीं ना कहीं विद्रोह कर रहा है, आपको रोक रहा है, आप उस शरीर की बात सुन नहीं पा रहे, आप जोश में सिर्फ दौड़ते जा रहे हैं, नतीजा आप कहीं भी ब्रेक डाउन होगा आपका और आप गिर जाएंगे। तो मेहरबानी करके मेरी जो बातें आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट। हो सके तो हेल्थ ब्लेंडर करके एक सीरीज मेरी है जो आपको फेसबुक पे आप हेल्थ ब्लेंडर सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, उसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारे चेंज आएंगे। अब हम लोग उस दिन से आज तक पिछले 6 सालों में मैंने करीब करीब 9,500 किलोमीटर दौड़ा हूँ, जो रिकॉर्डेड है स्ट्रावा के ऊपर। सिर्फ लोकेशन ऑन करके दौड़ना होता है उस वेब पर, और वो रिकॉर्ड कर देता है आपके स्टेपिंग और टाइमिंग और कितनी दूर आप दौड़े। तो उस पर सारा रिकॉर्ड आपको मेरा मिल सकता है। स्ट्रावा के ऊपर सतीश सक्सेना सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। गूगल पर आप सतीश सक्सेना सर्च करेंगे, आपको मेरी राइटिंग मिल जाएगी जो आप ढूंढना चाहें। नाउ सवाल इस बात का है कि बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं, मेरे अंदर ऐसी क्या खास बात हुई जो दूसरे नहीं कर पाए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम लोग जनरली अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं,
प्रोफेसर जो हैं वो अपने एजुकेशन फील्ड में बिजी हैं, रिसर्च में बिजी हैं, उनके पास समय ही नहीं मिलता कि वो रीड करने की समझने की कोशिश करें। वजन सबका बढ़ा हुआ है, खासतौर पर महिलाओं का वजन बढ़ा हुआ है। वो बेचारी घर भी देखती हैं और ऑफिस भी देखती हैं, उसके बाद वो अपने आप को ठीक नहीं कर पाती। रीजन क्या है? मैं जो आपको बताना चाहूंगा, रीजन सीधा सीधा एक है कि उन्होंने कभी सोचा कि वो कर क्या रही हैं। वो कॉपी बुक स्टाइल में सिर्फ वॉक करने जा रही है, वो कॉपी बुक स्टाइल में दौड़ने की कोशिश कर रही है। अरे भैया, ऐसे नहीं दौड़ना है, वॉक ऐसे नहीं करना है। जब आप वॉक करने निकलते हैं तो क्या आपने कभी अपनी उंगलियों पर ध्यान दिया? ये एक मेडिटेशन है। आप 45 मिनट का जो वॉक करेंगे या जो रनिंग मेरी लाइन पे अगर आप दौड़ना चाहेंगे, ये एक मेडिटेशन है। दौड़ते समय अंधे होकर के, आंख बंद करके सिर्फ दौड़ने के लिए नहीं दौड़ना है। आपके शरीर के एक एक हिस्से से बात करते जाइए। आप ध्यान दीजिए दौड़ते समय, मेडिटेट रखिए अपने आप को सिर्फ इसी चीज पर जो आप करने घर से निकले हैं। ना कि अपने एक दोस्त को साथ ले लिया, रिटायर्ड दोस्त को, और उसको अपनी अपनी बहादुरी के किस्से सुनाए जा रहे हैं कि मैंने पूरी जिंदगी में क्या क्या तीर मारे। ये मत करिए, आप कभी रनिंग और वॉक नहीं कर पाएंगे, उसका फायदा भी कभी नहीं होगा। देखने में आप वॉक करेंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं। अब बेनिफिट क्यों नहीं, ये सुनिए। शरीर आदतों का गुलाम है। आप जो काम करेंगे वो शरीर उसको ग्रहण कर लेता है आसानी से। अगर आपने हैबिट डाली तो शरीर आसानी से उसको ग्रहण कर लेगा। पढ़ाई की हैबिट डालिए, शौक से डालिए, क्योंकि शरीर उसको ग्रहण कर ले, यही आप चाहते हैं। मगर अगर वॉक पे आप शरीर ने ग्रहण कर लिया आपकी वॉक करने का तरीका, तो पता चला कि आप अपने दोस्त के साथ गप्पे मारते हुए गए, शरीर को पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ वॉक कर रहा है। तो वो एक आदत का पार्ट अगर शरीर का पड़ जाएगा, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, विश्वास करिए। आपको आदत आप उसकी व्यवहार शरीर को सीखना है कि इस चलने से हमारे शरीर के ऊपर चेंजेस क्या आ रहे हैं। बॉडी कोर के अंदर जो आपके किडनी से लेकर लीवर तक जो हिस्से हैं, क्या उनके अंदर वाइब्रेशन आप दे पा रहे हो? और अगर नहीं दे पा रहे तो आप गलत कर रहे हो। आप क्या अपने उंगलियों को वॉच कर रहे हो? पैरों की उंगलियां किस तरीके से टर्न ले रही हैं? जब आप एक स्टेप लेते हैं तो वो स्टेप गिरता कैसे है और उठता कैसे है? क्या आपने कभी गौर किया है? कभी नहीं किया होगा। क्या आपने हाथों के चलने पर, मूवमेंट पर गौर किया? नहीं किया होगा। ये सब गौर करते रहिए रोज, किसी को साथ लेके नहीं जाइए, अकेले वॉक करिए। मैंने पूरे जीवन 6 साल जो ये 10,000 किलोमीटर दौड़ा हूं, आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, एक दिन भी कंपनी लेकर के नहीं दौड़ा। किसी की कंपनी नहीं चाहिए। मुझे स्ट्रगल करना है, अपनी जीवन बचाना था। मैंने आपसे कहा कि मैं 52 साल की एज में मर जाता, जो स्थिति वाकई में इतनी बुरी थी कि मेरे बचने के चांसेस नहीं थे। मगर मैंने 52 साल की एज में, आप विश्वास करेंगे, जितनी बीमारियां बताई थी धीरे धीरे सब गायब हो गई, इंक्लूडिंग खांसी नहीं है मुझे आज। ये असंभव चीजें हैं जो कोई बिलीव नहीं कर पाएगा। शरीर की मेरा एक एक पार्ट, एक एक बॉडी पार्ट उतना ही एक्टिव है इस वक्त जो 35 साल की एज में था। आप इस पे यकीन करें या ना करें, हो सकता है आप इसे मेरी बूस्टिंग मान लें, ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे समझ रहे हैं। मगर ये फैक्ट ऑफ लाइफ है जो मैंने आपको बताया, मेरी लाइफ का अपना जो अनुभव था। वो दौड़ जो ये रनिंग से मैंने अपने शरीर को चेंज लाया, इसके अंदर दौड़ते दौड़ते जो परिवर्तन हुए वो अलग थे। इसके अलावा कुछ और आवश्यक चीजें थी। नंबर 1, कोई भी आदमी, इंसान, इवन स्टूडेंट पढ़ाई पूरी नहीं कर सकता अच्छी तरीके से। 99% मार्क्स आज के टाइम के लाने आसान नहीं है, जब तक कि आप एक प्रसन्न चित्त मन से उसे स्टार्ट ना करें। अगर आप खुश होकर के उसे वहां पर पहुंचे हैं और आप उसे देख रहे हैं, उसे याद कर रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, तभी आप वहां पर जीतते हैं। एज ए स्टूडेंट का मैंने एग्जाम्पल दिया, नॉट ओनली स्टूडेंट, किसी को भी ले लीजिए, खुशी बहुत आवश्यक है। अगर चेहरे पर रौनक नहीं है, और वो भी अंदर से, इंटरनली, ये नहीं कि दिखावे के लिए आप हंस रहे हैं। आज पार्क में लोग जाकर खड़े होकर हा 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 करके हंसने की कोशिश करते हैं। मुझे उन्हें देख करके तरस आता है उन लोगों पर कि इतने सीनियर लोग, और वो यकीनन उनमें से 12-14 के बुड्ढों का ग्रुप में, मैं माफ करना, मैं बुढ़ा यूज कर रहा हूँ वर्ड, मैं बुढ़ा उन्हें मानता हूं जो दिल से बुढ़े हैं, जो मन से बुढ़े हैं।
तो इन 15-20 बुढ़ों को जब मैं हंसते हुए देखता हूँ, हा 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 करते हुए, और उसमें एक लीडर बन करके हंसा रहा है, तो मुझे तरस आता है उन सब पर। मुझे पूरा विश्वास है कि उनमें 99% बुढ़े कहीं ना कहीं मुझसे ज्यादा विद्वान हैं, मुझसे ज्यादा बड़ी हैसियत से रिटायर हुए हैं, मुझसे ज्यादा आज भी वो नॉलेज रखते हैं। अफसोस होता है कि वो सोच नहीं पा रहे कि हम करने क्या जा रहे हैं, इस वक्त कर क्या रहे हो, हंसना चाह रहे हो, क्या ऐसे हंसी आएगी, क्या ये हंसी ठीक है? क्या हंसी का अर्थ ये होता है कि मुंह से आवाज निकालें और स्माइलिंग तरीके से दांत दिखने लगे, बस इसी को हंसी कहते हैं? ये हंसी नहीं है। आप गौर करिए हंसी क्या होती है, आपको पता चल जाएगा हंसी क्या है। मुझे बताने की जरूरत नहीं हंसी क्या होती है, सबको पता है, मगर आपने कभी गौर ही नहीं किया कि हंसी होती कैसी है। आप जरा एक दिन गौर करके देखिएगा, क्या आप कभी लाइफ में हंसे हो? मैं ये गारंटेड कहता, जो मुझे विश्वास है, मेरे 90% दोस्त तो हंसना भूल गए। कुछ शादी ने मार दिया, कुछ शादी के बाद बच्चों ने दबा दिया, कुछ रिटायरमेंट के बाद और जमीन पे बैठ गए, बोले अब तो हम किसी लायक ही नहीं बचे। वो रिटायरमेंट के बाद लाइफ को खत्म होना मानते हैं, वो तड़पते हैं कि मेरी वो पावर, मेरी ताकत चली गई। मैं गजटेड ऑफिसर था, इतना बड़े रैंक पर था, मैं एयर कंडीशन ऑफिस, गवर्नमेंट ने ऑफिस दिया, वो ये सब बेकार की बात है। मुझे तो लगता है कि मैंने जो ऑफिस में अपना टाइम यूज किया, जो सिर्फ नौकरी करने में, ठीक है वो मैंने ड्यूटी की, मगर शायद उसमें बहुत सारी चीजें मैंने छोड़ के रखी हुई थी, तो ध्यान ही नहीं दिया था। एक अफसरी का नशा होता है, वो नशा मुझे भी था थोड़ा बहुत, चाहे वो कम हो मगर था कहीं ना कहीं तो होगा ही। नतीजा मैं अपनी हेल्थ को अगर पहले से सुधार लेता 35 साल की एज से। मैं स्टूडेंट से खास तौर पर एक अपील करना चाहूंगा। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो ये सोचा करता था कि जो बुढ़ा मिलता है वो यही कहता है कि यार तुम अपनी हेल्थ की केयर नहीं करते। अरे भैया हमें करने की क्या जरूरत है, हम तो जवान हैं, तुम करो ना अपनी हेल्थ की केयर। मैं सतीश सक्सेना अक्सर ये मेरे विचार हुआ करते थे जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था। नतीजा मैंने 55 साल बर्बाद कर दिए। हेल्थ की केयर करने का मतलब ये नहीं है कि आप जिम जाकर के कुश्ती करना शुरू कर दें इंस्ट्रूमेंट के साथ में और मसल्स बना लें। दिस इज नॉट हेल्थ। हेल्थ वो है जिसमें मानसिक हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आपको हंसना आता है कि नहीं आता है, आप घर में खुश रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते। ऐसा कोई इंसान हम में से नहीं जो कष्ट जैसे नहीं मिलते। जीवन का नाम ही कष्ट, सुख और दुख दोनों के साथ कॉम्बिनेशन होता है। तो दुख को ओढ़ के बैठे हो क्या, तो मर जाओगे जल्दी, खत्म हो जाओगे। इवन यंगस्टर्स खत्म हो जाते हैं, बचते नहीं है। मैं कड़वे वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसको अन्यथा ना ले, मगर ये हकीकत है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे अगले 20 साल तक जीना होगा, हो सकता है मैं कल का सवेरा देख ही ना पाऊं, और मुझे खुशी होगी कि मैं हेल्दी लाइफ के साथ में यहाँ से गया इस दुनिया से। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे मौत नहीं आएगी, मौत मुझे भी आएगी, मगर मौत ऐसी आनी चाहिए कि जिसमें बेड रिडन ना हो। मैं बिस्तर पर लेट करके बीमार होकर के मरना नहीं चाहता, और मैं कामयाब हूँ अच्छी तरीके से। जो मेन चीज है वो असली जो मैं आपको इसमें मानसिक हेल्थ। मानसिक हेल्थ का मतलब ये है कि आप अपने दुख पर, जिस समय आप तकलीफ में हो, जब आप इंसल्टेड फील कर रहे हो, लाइफ में से बहुत सारे मौके आते हैं जब आपको रोना पड़ता है, चाहे वो घर में रोए चाहे बाहर रोए, चाहे आपकी परिवार आपको रुला रहा हो या बाहर वाले रुलाए। मगर इस घटना को आप किस तरह से अपने ऊपर लेते हो, पूरे जीवन याद रखे रहते हो, तो यकीनन आप गलत कर रहे हैं। आप हर हालत में उस घटना को कोशिश करना कि 24 घंटे के अंदर वाइप आउट कर पाओ अपने माइंड से। वो दिमाग में होनी ही नहीं चाहिए कि मेरे साथ ये बुरी घटना घटी। हम में से ऐसा जितने सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे कष्ट नहीं, और बहुत गहरे कष्ट है। अगर आप शेयर करें ईमानदारी के साथ बैठ करके तो आपको पता चल जाएगा कि मुझसे ज्यादा तो तकलीफ में ये सामने वाला है। मगर उन कष्टों को याद ना रख करके अपनी खुशियों को याद करिए, जो आपको खुशियां मिली। हर एक की लाइफ में खुशियां भी है, उन खुशियों के साथ हंसिए और ठट्ठा मार के हंसिए, और बिना इस परवाह किए हंसिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग जो कहते हैं वो बेकार की बातें हैं। आप वो कहिए जो आपका कॉन्शियस अलाउ करता है। अगर आपका दिल कहता है कि ये करेंगे तो करेंगे, और नहीं करना है तो नहीं करेंगे। जहां मना करे वहां मत करिए, जो कहे। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, ईमानदार रहने की कोशिश करें, ऑनेस्ट। अगर आप अपने ब्रेन के ऊपर, अपने फेस के ऊपर एक मास्क ओढ़ करके बात करते हैं सबसे, कि घर से बाहर निकले हो तैयार होकर के जाएं, राजा बेटा बन करके जाएं,
देखने में शीशे के आगे 4 बार जल तब जाए, मुझे लगता है कि ये बेकार की बात है। जब आप दिखावा करेंगे तो आप अपने साथ न्याय नहीं कर पाओगे। आपकी आवाज में ताकत सिर्फ तब आएगी जब आप वाकई ईमानदार होंगे। और मैं अपने दोस्तों को, अक्सर मेरे दोस्त कहते हैं कि इतनी ईमानदारी भी ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं तो हमें छिपानी बातें पड़ती हैं। बिल्कुल नहीं छिपानी चाहिए। क्यों छिपानी चाहिए? अगर हम कोई डकैती डाल रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं, जो हम छिपाएं। अपने बारे में भी बोलिए, ऐसे कुछ मित्र बनाइए जिनके बारे में खुल करके आप बात कर सकें और अपने बारे में खुल के बता सकें। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी तारीफें करें, जो हम ज्यादातर बुढ़े करते रहते हैं बैठे। हम अपनी तारीफों में ही जीते हैं, कोशिश करते हैं लोग हमारे आसपास घेरे रहे, हमें तारीफ करें। नतीजा, बुढ़ों के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता। वो नहीं चाहते कि हम अपना समय बर्बाद करें। और हम लोग ये समझ नहीं पाते कि पिछले लाइफ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा आने वाले टाइम में है से लेना देना है। तो जब आप काम करना शुरू करेंगे, तब आपके मन से भावनाएं उमड़ेंगी और आप कोई भी काम में स्टेपिंग लेंगे तो वो आपके मन से निकलेगा। मैं यही बताना चाहता हूँ मेरे बारे में। अगर आप फर्दर लर्न करना चाहें। जी सतीश जी, हम ये जानना चाहेंगे, आपने हालांकि बहुत विस्तार से बहुत सारी चीजें बताई एंड देयर इज लॉट ऑफ टेक अवे फ्रॉम व्हाटएवर यू सेड, लेकिन मैं अगर खास तौर से कंसंट्रेट करूं आपकी रनिंग के ऊपर, तो आपने जैसे शुरुआती जो पहली आपकी रेस थी, रनिंग थी, उसके बारे में बताया, बट उसके बाद भी आप लगातार दौड़ रहे हैं, देश के अंदर दौड़ रहे हैं, देश से बाहर दौड़े हैं, म्यूनिख में भी आप हाफ मैराथन में दौड़े हैं। तो ये जो आपके अलग अलग तरह के जो अनुभव हुए, उसके बारे में अगर आप कुछ और हमें बताएं कि आपको मतलब आपके अनुभव कैसे थे, आपके सामने चुनौतियां क्या थी और किस तरह से आपने मतलब इस लेवल तक लगातार आप दौड़ते चले गए। जी, 100 डे ऑफ रनिंग एक इवेंट है जो वर्ल्ड में होती है, बहुत फेमस रनिंग है। इंडिया में से ही ऑर्गेनाइजर हैं उनके, और वो कराते हैं पूरे विश्व में। इस पिछले साल जो अक्टूबर में खत्म हुई थी रनिंग, उसमें मैं जो शामिल हुआ वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। 100 दिन की रनिंग थी और 100 डे के लिए दौड़ना था, कंटिन्यूअस रोज दौड़ना होता है। उनकी कंडीशन ये होती थी, चाहे आप बीमार हो या तबीयत खराब हो या किसी सफर में जा रहे हो, मगर मिनिमम 2 किलोमीटर जरूर दौड़ना है। तो मैं 5 से 7 किलोमीटर के एवरेज में दौड़ने लगा था, रोज दौड़ रहा था। मॉर्निंग में निकलता था 5-7 किलोमीटर, सुबह 3:30 बजे 4 बजे उठ जाते हैं, 1 घंटा फ्रेश एंड प्रिपरेशन होने में लगता है। 4:30 पौने 5 बजे अपने जो रनिंग के कपड़े हैं वो सब पहनना, और जो जरूरी चीजें हैं जैसे पसीने के लिए एक रूमाल साथ रखना या सिर पर हेड बैंड बांधना, जो पसीना टपकना शुरू हो जाता है। अगर लंबा दौड़ रहे हो, मान लीजिए 2.5 घंटा लगातार, जैसे मैं 2.5 घंटे लगातार दौड़ता हूँ, तो पसीना आंखों में आता है बैठ बैठ के। उन कंडीशन में रुकना संभव नहीं होता, क्योंकि घड़ी चल रही होती है, टाइम रिकॉर्ड कर रही होती है, लोकेशन उसमें एंटर्ड होती है, तो हम लोग उसे अक्सर दौड़ते रहते हैं। तो वो पसीना सुखाने वगैरह काम, इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो सब लेकर 4 बजे निकलना होता था। करीब 20-25 दिन तक दौड़ता रहा। उसके बाद में एक दिन मैंने अचानक, लाओ देखूं कैसे, कहाँ पे हूँ मैं, किस जगह पे हूँ। हालांकि मैं कंपटीशन कभी ज्वाइन नहीं किया, मगर उस दिन अचानक पता नहीं क्या मन में आया कि कंपटीशन में मैं पहुंच गया। चाहे मानवीय वीकनेस समझ लो या एक हिम्मत समझ लो। देखा मैंने कि मैं नोएडा में 3रे नंबर पर दौड़ रहा हूँ। नोएडा में सिटी में देखा कि मैं कहाँ पर हूँ, 3रे नंबर पर। तो खराब लगा कि मेरे एज ग्रुप का आदमी जो 50 से 60 के बीच के ग्रुप था, इसमें ये कैसे संभव है कि मैं 3रे नंबर पर रह जाऊं। ये अजीब सा शौक लगा। और देखा कि वर्ल्ड में मैं कहाँ पर हूँ, तो करीब 1200वें नंबर पर था। तो नोएडा का मुझे खराब लगा मेनली। तो नोएडा में मैं रह रहा था, वही मैं दौड़ रहा था। तो मुझे लगा नहीं कि मेरे एज ग्रुप का आदमी मुझसे ज्यादा दौड़ेगा, और अच्छा भी लगा कहीं कि चलो कंपटीशन तो है। तो मैंने अपनी गति बढ़ा दी और समय बढ़ा दिया, ड्यूरेशन रनिंग का। तो मैंने अगले दिन 21 किलोमीटर किया, और जिन लोगों से कंपटीशन था वो भी साथ थे। तो मैं देख रहा था कि जब उन्होंने देखा कि मैंने 21 किलोमीटर बढ़ाया, तो दूसरों ने 18 किलोमीटर, किसी ने 21 किलोमीटर, उन्होंने भी वॉक शुरू कर दिया। वो रन और वॉक दोनों था। तो मैंने उसमें 21 किलोमीटर करना शुरू किया। मैंने कहा चलो, और मैं बड़ी जल्दी उनको क्रॉस कर गया करीब 60 दिन बाद। मगर जो लास्ट के जो 60 डेज में मुझे करीब रोज 15-17 किलोमीटर दौड़ना पड़ा, तब उन्हें क्रॉस कर पाया।
तो कर तो लिया। अब कंपटीशन में आ चुका था, वो लोग भी वॉच कर रहे थे, हम भी वॉच कर रहे थे उनको। तो कंपटीशन था, तो अब फंस गया एक तरह से, जैसे फंस जाते हैं उस तरह से। तो उस कंपटीशन में मैंने सोच लिया था कि फर्स्ट आऊंगा नोएडा में, एटलीस्ट नोएडा में तो फर्स्ट आना ही। तो फर्स्ट नोएडा में भी मैं सेकंड था। एक और दोस्त थे, वो आगे थे मुझसे, और वो बुजुर्ग थे, मेरे एज ग्रुप के थे, मगर वो बहुत अच्छा दौड़ रहे थे। मैंने उनकी पिछली अंदाजा लगाने की कोशिश की कि इनकी हिस्ट्री शायद, अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत स्टूडेंट लाइफ से ही दौड़ते हैं, तो वो उनमें और मुझ में बहुत फर्क होता है बॉडी में। खैर मैं दौड़ता रहा, मगर उस दौड़ने में चूंकि लगातार दौड़ रहा था, एक गड़बड़ या समस्याएं मेरे साथ और थी कि मैंने फूड पर ज्यादा जोर नहीं देता था कभी भी। मैंने अपने ऊपर टेस्ट प्रयोग किए थे कि मैंने जब से रनिंग स्टार्ट की, इवन ड्राई फ्रूट बंद कर दिए खाने, और वो जो चीजें जो एथलीट खाता है वो मैंने स्टॉप कर दी थी जानबूझ के। और सिंपल रोटी, मोटी रोटी, दाल और सब्जी, बस ये खाता था। तो मैंने ये प्रूव किया कि रिक्शे वाला जो बाहर खड़ा होता है मेरे, जब वो रोज 50 किलोमीटर चलता है और 100 किलोग्राम की महिलाओं को बैठा कर चलता है रोज, तो सतीश सक्सेना तो एक साइकिल चलाते हैं बड़ी मुश्किल से 50 किलोमीटर। साइकिलिंग भी मैं साथ साथ करता रहा हूँ, 2 बार 100 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलाई है साइकिल इसी बीच में, मतलब ये भी आफ्टर 60 किया था। तब मैंने ये जो उसमें फूड में खाना बंद कर रखा था, नॉर्मल रोटियां खाता था। मगर फूड जरूरी है जब आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि पसीना रोज 3 से 4 लीटर बहता था सुबह सुबह, गर्मी का था। अच्छा, वो ये जो इवेंट थी ये जुलाई अगस्त सितंबर में थी। वो जानबूझ के ऐसी टाइम पर रखते हैं, 3 महीने 100 दिन लगातार, जब सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी हो, सबसे ज्यादा चैलेंज आपको फेस करना पड़े। तो पसीना 3.5 लीटर मिनिमम बहता था डेली। हालत ये थी कि घर से आकर के जब कपड़े निकालते थे, आपने एक फोटो मैंने आपको भेजा था, आपने देखा होगा, उसमें पसीने से तर हूं टोटल। तो पसीना से शर्ट को निचोड़ते थे तो आधा गिलास पानी भर जाता था, वो पसीना भर जाता था गिलास में। आप लोगों ने शायद ही कभी पसीना गिलास में देखा हो, मैंने देखा है, और मुझे फक्र है इस बात का कि कभी जीवन में पसीना कॉलर पे भी आता था तो गंदा लगता था, अभी गिलास में भर के बैठ जाता हूँ। तो वो उस समय पसीना बहने से जो इंपॉर्टेंट साल्ट थे बॉडी के वो घट गए, बहुत कम हो गए। नतीजा लास्ट मंथ में मुझे चक्कर आने लगे थे दौड़ते दौड़ते, और जब चक्कर आते थे तो मैं एक साथ कोई इलेक्ट्रिकल पोल पकड़ के बैठ जाता था जमीन पर, और बैठ के स्क्वाट 8 या 10 करता था, फिर खड़ा होता था। तो खड़े होने पर दोबारा फिर चक्कर आते थे। ये समझ नहीं पा रहा था ये हो क्या रहा है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे आइडिया, अच्छा एलोपैथी डॉक्टर के पास मिनिमम जाता हूँ, गया ही नहीं, ऐसे मान के चलिए। तब मैंने अपने एक डॉक्टर दोस्त हैं जो एलोपैथी का प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर RS गुप्ता, उनको फोन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब इस तरीके से समस्या है। तो बोले आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा ऐसे ऐसे पसीना। बोले कितना? ना बहुत, 3.5 लीटर 4 लीटर। अरे बोले कमाल कर दिया, सारे साल रिमूव हो जाएंगे। ये मुझसे मिस्टेक थी जो इसी साल की है, क्योंकि इतना कभी दौड़ा नहीं था। 1800 किलोमीटर, 1850 किलोमीटर 100 डेज में दौड़ा हूँ। तो तब वो उन्होंने कहा कि आप ये केयर करिए, पानी बहुत, मैंने पानी तो मैं पीता हूँ, पानी के बिना तो कोई दौड़ ही नहीं सकता, तो वो तो मस्त है, मुझे मालूम है। उन्होंने कुछ साइड दिए और कहा प्लीज फूड बढ़ा दीजिए, 3 गुना कर दीजिए, क्योंकि शरीर के अंदर वीकनेस है। तो मैंने वो 3 टाइम्स फूड, सुबह दोपहर शाम खाना शुरू किया, जो 1 टाइम खाया करता था। नतीजा वो फर्क ठीक हो गया। एक तो यही स्ट्रगल था। और जी, तो सतीश जी हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने साइकिलिंग का भी अभी जिक्र किया, तो आपने तो सिर्फ अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और फिर एक जिद के तौर पे इस तरह से जी। दौड़ना शुरू किया, फिर साइकिलिंग की। लेकिन अगर वैसे हम देखें, यंग एज से ही अगर किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो उसके जीवन में स्पोर्ट्स का कितनी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, खेलकूद को कितनी अहमियत देनी चाहिए हमारी पढ़ाई लिखाई और बाकी दिनचर्या के साथ? आप क्या सोचते हैं इस बारे? जी डॉक्टर अमरीश, जो शरीर है, फेस है, जो हमारा शरीर मेनली बॉडी कोर के अंदर जो पार्ट हैं, उन पार्ट की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, हर इंसान को जरूरी है। आप याद करिए 10,000 साल पहले जब हम गुफाओं में रहते थे, उस गुफाओं में हमें कम से कम आधा दिन, लेडीज हो या महिला, आदमी हो, माँ हो या पापा हो, दोनों को दौड़ना पड़ता था। जंगल में जाना, फ्रूट इकट्ठे करना, खरगोश का शिकार करना, और अपनी जान बचाने के लिए भेड़िए से पेड़ पे चढ़ना।
और फिर दौड़ते हुए गुफाओं में आना। ये इतनी मेहनत करने वाला इंसान अपनी लाइफ 90 साल जीता था। उन्हीं के हम पूर्वज हैं, वो हमारे पूर्वज थे, हम उन्हीं के वंशज हैं। जब हमने आज के समय में हमने यही सब छोड़ दिया, बाकी हम सब करते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ प्रोफेसर अमरीश, आपको भी इशारा दे रहा हूँ। हालांकि आप कई बार मुझे फख्र होता है कि आप इतनी स्ट्रांग, मतलब मुझे लगता है कि आप मेरे एज ग्रुप के होंगे, मगर जिस तरीके से आपकी बॉडी और आपने अपने आप को मेंटेन किया वो काबिल तारीफ है। बहुत कम लोग हैं जो 60 के बाद इस तरीके से मेंटेन कर पाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि ज्यादातर प्रोफेसर तो घर में ही बैठे रहते हैं, कुर्सी पर, ऑफिस में भी और घर पर भी, और उनके पास फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। उनको चाहिए कि हर हालत में अपने शरीर के उन सारे अंगों की एक्सरसाइज को ध्यान दें, मेडिटेट करें कि इस अंग की एक्सरसाइज नहीं हुई, इसे करना है। जी, आपका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा बहुआयामी है सतीश जी। ये तो सिर्फ एक पक्ष हुआ उसका। आपका साहित्य में भी उतना ही दखल है और आप ब्लॉग्स लिखते हैं, आप कवि हैं और बहुत सारा चीजें आप लगातार लेखन से जुड़े हुए हैं। तो आप अपने लेखन के बारे में भी अगर हम लोगों को कुछ बता सकें। जी, लेखन से सिलसिले में कवि का होना, मैं कविता से स्टार्ट करूंगा। कविता मुझे लगता है वो हर आदमी कविता कर सकता है जो एक बहुत प्यारे दिल का मालिक है। मैं अपनी तारीफें नहीं कर रहा, मैं ये सच कहना चाह, और जो झूठ नहीं बोलता हो। आजकल तो इतने कवि हैं हर जगह, फेसबुक पर कवि कवि दिखते हैं सारे। मुझे नहीं लगता कि वो सब कवि के योग्य भी हैं। उनमें से कोई कविता वही लिख पाएगा जो डूब करके लिखे कोई चीज, जिसे वो महसूस किया हो, जिसने उसने फील किया हो। मेरी अक्सर कविताएं एक, जैसे कि मैंने बच्चों के ऊपर लिखी, बेटी के ऊपर लिखी, माँ के ऊपर लिखी, तो या तो किसी, मान लीजिए किसी दोस्त की मदर की देहावसान हुआ है और मैं वहां गया और उसको बिलख के रोते देखा, तो उस समय भाव उमड़ते हैं। उसको छुपाते हुए मन में कुछ लाइनें आई, उन्हें एक जगह नोट कर लिया, उसके बाद बैठते ही वो कविता बन जाती है। उसमें देर नहीं लगती। जिस कविता को बनाने में कोई 2 घंटे या 2 दिन लगाए, मैं उसे कवि नहीं मानता। वो कविता नहीं है, वो उसकी विद्वता का परिचायक है कि वो अपनी विद्वता दिखाना चाहता है कविता के जरिए। कविता वो है जो मन में से आए और उमड़े भाव और लिख दिए जाए। जी, तो इस तरह से लिखना शुरू किया कविता। और समाज में मैं बहुत समाज के प्रति अग्रेसिव हूँ, माफी चाहता हूँ। हमारे समाज में, हिंदुस्तानी समाज में दिखावा बहुत ज्यादा है और छिपाव रखते हैं। हम अपने परिवार में बच्चों के सामने कह देते हैं ये बात सबके सामने मत कहना, या दरवाजा बंद करके हम हस्बैंड वाइफ बात करेंगे, बच्चे ना सुने। ये हम अपने घर में जहर बोल रहे हैं। अगर हम झूठ अपने घर से शुरुआत करते हैं तो हमें झूठ ही मिलेगा समाज से। आज इंडिया में किसी कोने में हम लोग चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हर आदमी विद्वान है, हर आदमी तुरंत आपको समझाना बैठ जाएगा कि मैं आपको डॉक्टर अमरीश, मैं आपको बताता हूँ एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, और वो बताना लगेगा। अब आप सुनते रहिए, अगर वो आपको नहीं जानता तो वो आपको पूरा भाषण देगा उस पर। तो ये बदकिस्मती है हमारे देश की, जहाँ की विद्वता, रियल विद्वता कम और दिखावा बहुत ज्यादा होता है। विद्वान जो हैं वो भी कोशिश करते हैं उछल उछल के कि अपनी विद्वता दिखाने की कोशिश करें। डॉक्टर अमरीश, मैंने जीवन में आज तक अपनी 750 रचनाएं, कम से कम 150 रचनाएं अखबारों में छपी हैं, बिना मेरे एक भी भेजे हुए। मैंने आज तक अपनी रचना अखबारों में छपने के लिए भेजना अपना अपमान समझता हूँ। उस कविता का अपमान मानता हूँ कि जिसमें वो कवि चाहता है कि मेरा नाम हो जाए। नाम के लिए की हुई कोई भी चीज नाम नहीं होती। उसको मैं दिखावा मानता हूँ। दिखावा रहा तो आप ना लेख लिख पाएंगे ढंग से और ना आप कविता लिख पाएंगे। तो समाज के प्रति लेख लिखे हुए लेख और कविताएं, खासतौर पर जैसे बहू है, बहू के ऊपर लिखे हैं कि बेटी और बहू में फर्क क्या है। लोग कितना फर्क करते हैं और रोते रहते हैं हमारी बहू खराब आ गई। अरे तुमने खुद क्या किया ये तो नोट करो। जी, आपकी कविताओं को हम निश्चित रूप से सुनना चाहेंगे। आप पहले भी कार्यक्रम में आए हैं डीएमई के, जहां बहुत सारे जो अभी छात्र हैं वो नहीं, इनसे सीनियर थे, उनको आपकी कविताएं सुनने का मौका मिला था। लेकिन अभी हम यहाँ पर कार्यक्रम के अंत में मैं चाहूंगा कि आप अपनी 2 पंक्तियों से इस कार्यक्रम को समाप्त करें। बट अभी हम कार्यक्रम के चौथे सेगमेंट में स्टूडेंट से अनुरोध करेंगे कि वो आए कैमरे पर और सतीश जी से सवाल पूछे। ओके सर, नमस्ते सर।
सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप भी ब्लॉग या फिर कविताएं लिखते हैं, उससे अच्छा लगा कि अपने आप से रिलेट कर पा रहा हूँ मैं कि हाँ उन चीज़ों को कैसे अपने वर्ड्स को लिखना। सर जैसे कि कभी कभी हम लिखते हैं तो आपने बोला कि उसको फील के साथ लिखना होता है हमें, है ना, कि जो भी आप महसूस करते हो वो लिखते हो। तो सर ऐसा भी होता है कभी कभी कि आपको वर्ड्स नहीं मिलते उन चीज़ों को लिखने के लिए, कि आपके जहन में तो आ रहा है कि हाँ मुझे ये लिखना है, बट हमें वर्ड नहीं मिलते कि उसको लिखे कैसे हम। तो इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि हमारे अंदर नए नए विचार आए। हाँ शशांक, लेखन में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लेखन दिखावा नहीं होना चाहिए। अगर दिखावा करेंगे तो आप परेशान रहेंगे, क्यों? आपको वर्ड नहीं मिलेंगे। आप सहज हो जाइए और सोचिए कि शशांक का मन क्या कहता है, और जो आपका मन कहे, जिस विषय पर आप लिखना चाह रहे हो, अपनी सामान्य भाषा में, जिसमें आप घर में माँ से बात करते हो, अपने दोस्तों से बात करते हो, उस भाषा में लिख दो। हिंदी के कठिन शब्द तलाश करने की कोशिश करना बेमानी है, बेकार है। फिर तो आप साहित्यकार के श्रेणी में आना चाह रहे हो। और जब भी कोई टारगेट लेकर के लेखन करोगे, अचीवमेंट, और मन में मेरी इज्जत हो, रेस्पेक्ट हो, तारीफ हो, तो मुझे लगता है दिखावा आपके लेख से और कविता से झलकेगा लोगों को कि आप शो ऑफ कर रहे हो। तो सहज रहिए, सहजता के साथ जो भाषा मन में आए वो लिख दो। जी धन्यवाद सर। खुशी श्रीवास्तव अपना सवाल पूछो। खुशी, दृष्टि। हेलो सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम मीडिया स्टूडेंट्स हैं, तो सर हम अपनी स्टडीज को एंड हमारी राइटिंग स्किल्स उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू आवर स्टडीज, लाइक विद द हेल्प ऑफ आवर स्टडीज? हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आप बोलते कैसे हो। मैंने कहा सहजता सबसे कॉमन है। मैं आज आप लोगों को, इतने लोगों को फेस कर रहा हूँ। मैंने ऐसे वीडियो क्लिप शायद 3 या 4 बार मेरा इस तरीके के इंटरव्यू हुए हैं डिफरेंट जगह पर, 5 जगह, मगर मेरा कभी भी एक्सपीरियंस नहीं था। मगर मैं हमेशा सहज रहा हूँ। आज भी मैंने आप लोगों से बात करने के लिए अपनी कोई नोट नहीं बनाए। सैकड़ों चीजें छूट गई होंगी, छूट जाए। सहजता आपका असर जरूर डालेगी। आप अगर सहज भाव से बात कर रहे हैं और दिखावा नहीं करना चाह रहे, अगर आप कोई चीज सोच करके बोलने की कोशिश करेंगे तो आप भूल जाएंगे आधी चीज। आप मेहरबानी करके हमेशा मीडिया में, जैसे आप कहीं गए तो पहले आप सोच लीजिए आप किस विषय में जा रहे हैं, किस विषय पर आपको बोलना है। उस विषय की जो मुख्य बातें हैं उनको आत्मसात कर लीजिए। याद मत करिए, आत्मसात होना चाहिए। आपको वाकई उसकी समझ होनी चाहिए। जब आप उस समझ को लेकर के आओगे तो आपको कॉपी बुक स्टाइल में या शीशे के आगे खड़े होकर के बोलोगे, जैसे बोलते हैं वैसे नहीं बोलना पड़ेगा। आपकी सहजता लोगों का मन अपने आप खींच लेगी। तो सहज रहिए, सहज भाषा में बात करिए। भाषा पे जोर मत दीजिए कि हम कौन सी भाषा है, ये वर्ड नहीं लाए तो लोगों पे इंप्रेशन पड़ेगा। नो, कोई इंप्रेशन नहीं पड़ता, आपके भाव का इंप्रेशन पड़ेगा। अगर आप ईमानदार हैं तो आपके चेहरे से बोलेगा कि आप ईमानदारी से बात कर रहे हैं। जी जी। शिक्षा, सवाल पूछना चाहती हूँ? सर हाँ मुझे दृष्टि, पूछना है कुछ। हाँ तो हाँ पूछो। ओके सर, आपने बहुत से चैलेंजेस फेस करे हैं अपनी लाइफ में। तो हर इंसान की लाइफ में ऐसा फेज आता है जहां पर कुछ अचीव करना होता है तो मेंटली बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज फील करता है वो, और बहुत ही ड्रेन हो जाता है एक टाइम पर आकर। तो सर जब आपकी लाइफ में ऐसा फेज आया था तो आपने कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करा और अपने आप को कैसे मोटिवेट करके रखा? आपने इतनी चीजें अचीव करी हैं, तो कुछ आप सर अगर टिप देना चाहें, अगर हम कुछ ऐसा फेस करते हैं आगे जाके तो हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं उस चीज को? दृष्टि, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप घबराहट को लेकर के साथ में अगर चलेंगे कोई भी बात कहने के लिए, तो आपको आपको रुक रुक करके बोलेंगी, या कहीं ना कहीं आपको आप फेलियर फील होगी आप अपने आप को, और आपके चेहरे से पता चल जाएगा कि आप घबराई हुई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि घबराहट नहीं होनी चाहिए। उसके लिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, कि सहजता बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी जगह पर अगर आपको सहजता के साथ में, अगर आपने, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। कुछ एग्जांपल आपने भी पढ़े होंगे मीडिया में। आईएएस वगैरह के कंपटीशन में कई बार ऐसे लोगों का सिलेक्शन आसानी से कर लिया जाता है जो शायद एजुकेशन में उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, उनकी उतनी हैसियत नहीं थी, और मार्क्स कम होने के बावजूद भी ऐसे लोगों को सेलेक्ट कर लिया गया। उसका रीजन उनकी सहजता थी,
उनका आत्मविश्वास था जो उनके साथ लेकर के वो वहां खड़े थे। और ध्यान रखें, जो आपके सामने बैठे हुए हैं वो सामान्य लोग नहीं है। मैं आपके अगर गुरुजनों की बात करूं, जो प्रोफेसर यहाँ बैठे हैं, वो सब एक्सेप्शनल क्वालिफिकेशन रखते हैं। अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन को लेके वहां पर पहुंचोगे तो आपको घबराहट स्वाभाविक है, मगर आप ये मान के चलिए कि वो आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। आप इंटरव्यू में जाएं तब भी इसी फेस को लेकर के जाएं, इसी ब्रेन में अपने भर के जाएं कि वो हमें सब चाहते हैं कि हम अच्छे स्टूडेंट को तलाश कर लें। अच्छे का मतलब कंपटीशन नहीं है, मेरे अंदर जो अच्छाई है मैं अपनी अच्छाई तो बता ही दूंगा कम से कम। इस विश्वास के साथ जाओ, आप जीतोगी। ओके सर, थैंक यू। शिक्षा। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जब आपके इंट्रो के बारे में पढ़ा, आपका इंट्रो पढ़ा, तो मैंने देखा कि आपको फोटोग्राफी का भी काफी शौक है। तो मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी कि इन सारी फील्ड से हट के आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? हाँ, मैं फोटोग्राफी मैं 12th क्लास में था, उन दिनों से ही उन दिनों एक कैमरा आया करता था एग्फा का क्लिक 3rd, तो वो मेरे बर्थडे पर मुझे मिला था गिफ्ट। तो मैं उस कैमरे से फोटोग्राफी उन दिनों किया करता था, और आज भी उस कैमरे के खींचे हुए फोटो हैं। एक बार जब शौक हो जाता है फोटोग्राफी करने का, तो आप नेचर से जुड़ जाते हैं, आप यादों से जुड़ जाते हैं। आप फोटोग्राफी की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी मेमोरी संकलित रहती है हमेशा। अभी आज आप जो मेरे सामने बात कर रही हैं, ये मेमोरी आपकी खत्म हो जाएगी अगर रिकॉर्डेड ना की जाए। अब रिकॉर्डिंग आप वीडियो में कर लीजिए या फोटो में कर लीजिए। आज भी मुझे अपना फोटो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं अपना जहां भी जाता हूँ मेरा कैमरा मेरे साथ होता है। आज भी मेरे साथ कैमरा रहता है। मैं यहाँ जर्मनी में घूमने निकलता हूँ, कैमरा हमेशा संग रखता हूँ, चाहे मैं किसी भी मूड में क्यों ना हूँ। तो मेमोरी अगर आपने संकलित रखनी है, अपने जीवन के वो यादें संभाल के रखनी है, और जीवन है क्या, यादों का दूसरा नाम। तो कैमरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मीडिया रिकॉर्डिंग आप लोग जहां पढ़ रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें जिंदा रखेगी बरसों, हमारे मरने के बाद भी। जी। तो ये आपने जितनी सहजता से चीजें आप बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो बहुत आसानी से एक्सेप्ट हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। तो एनीवे सतीश जी, आप हमारा काम बहुत और हमारे टीचर्स का काम बहुत आसान कर दे रहे हैं। हो सकता है जो चीजें हम अपने छात्रों को बताते हैं वो उस ढंग से कम्युनिकेट ना हो पाती हो, लेकिन आपने जिस ढंग से उनको कम्युनिकेट किया तो एक्सेप्टेबिलिटी काफी ज्यादा होगी, ऐसी उम्मीद है। प्रिया, तुम कुछ पूछना चाहती हो? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे को आपसे ये पूछना है कि जो मैराथन रनिंग होती है तो ये कैसे एक थेरेपेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है? मैं क्या फिर से सर बोलो। मैराथन रनिंग जब आप करते थे तो ये आपके लिए लाइक आपने कहा कि आप इतने ओल्ड हो गए थे एंड आपने अपने आप को फिट रखने के लिए स्टार्ट किया था रनिंग वगैरह। हाँ तो वो जो एक थेरेपी की तरह आपके लिए वर्क किया ना वो हाँ रनिंग वगैरह, तो मेरे को हाँ वही जानना था कि वो कैसे मतलब कैसे वो हाँ थेरेपी की तरह वो हुआ? हाँ हाँ। देखो, मैं अगर तुम्हारे लिए ही मैं अभी तुमको ही फोकस में रह के बताता हूँ कि तुमको रनिंग कैसे करनी चाहिए। रनिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम अभी मैं तुमसे कहूँ पहले रनिंग सीखो तो तुम कहोगे रनिंग में सीखना क्या है, रनिंग तो सब बच्चे करते हैं, मुझे भी आती है। वो दैट इज नॉट रनिंग, वो रनिंग नहीं है। वो रनिंग आप कर पाओगी आधा मिनट, उसके बाद हांफने लगोगी, दैट इज नॉट रनिंग। ये ऐसी गलती कभी मत करना। इवन वॉक भी वो वॉक नहीं है जो आप वॉक करते हो, ठीक है। रनिंग जो है आप कैसे करें मैं आपको बताता हूँ। कल से आप जब वॉक करने जाएं तो 30 मिनट आधा घंटा जो भी रनिंग वॉक आप वॉक करती हो सामान्य गति पे जैसे आप करती हो, उसके बाद आखिर के 2 मिनट या 1 मिनट जब तक हाफ ना जाए तब तक दौड़ना शुरू करें धीरे धीरे, जॉगिंग जैसी स्टाइल से, ठीक है, जिसमें आपकी बॉडी में वाइब्रेशन हो, खास तौर पर पेट हिलना चाहिए, ठीक है। मगर ध्यान रखना स्पीड नहीं बढ़ाना है। अगर स्पीड बढ़ाए तो हाफ जाओगी, और जैसे ही आप तुम्हें लगे कि तुम हाफना शुरू हो गई फौरन स्टॉप कर लो अपने आप को, और उसके बाद घर चली जाओ वॉक करते हुए। बात क्लियर हो गई? इस तरह से आपकी जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर बहुत सारे अंग हिलते नहीं है अभी तक इस एज ग्रुप में भी, उनको उनमें वाइब्रेशन होना बहुत जरूरी है। आप वाइब्रेशन की आदत डालने में आपको 1 साल लगेगा, ध्यान रखना, ये जल्दी मत करना। मैं ये नहीं चाहता कि तुम 1 महीने में दौड़ना शुरू कर दो, मेरी तरह 1.5 महीने बाद भी नहीं दौड़ना है। वो मेरा हार्मफुल इफेक्ट था मेरी बॉडी पर जब मैंने 3 महीने में ही दौड़ना शुरू कर दिया था।
दौड़ना नहीं है, वॉक करना है, आखिर के 1 मिनट दौड़ना है, फिर वॉक करना है, अगले दिन आखिर का 1.1 मिनट दौड़ना है, फिर 1.2 मिनट दौड़ना है। तुम देखोगे अपने आप टाइम बढ़ता जाएगा और तुम हाफ नहीं रही। जिस दिन तुम 3 मिनट दौड़ लो बिना हाफे, धीरे 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 धीरे, याद रखना, उस दिन तुम रनर बन जाओगी। 3 मिनट का मतलब अगर तुमने स्लोली दौड़ लिया तो तुम लगभग 4 से 4.5 मिनट में तुम दौड़ पाओगी आधा किलोमीटर, 500 मीटर, समझ गए? तो तब तुम उसके बाद रनिंग की बॉडी को सिखा दोगी रन कैसे करना है, फिर बॉडी दौड़ेगी, तुम नहीं दौड़ना है। हम लोग ज्यादातर गलती करते हैं, हम दौड़ने की कोशिश करते हैं, बॉडी को नहीं सिखाते रनिंग। जी, चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। खासतौर से अगर मैं मुझे एक सेकेंड, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। मुझे हाँ। ये क्वेश्चन पूछना है, हाँ जी नमस्ते, कि मोस्टली मैं देखती हूँ कि सोसाइटी में भी या वैसे भी जब लोग वॉक फास्ट थोड़ा वॉक कर रहे हैं तो उसमें भी म्यूजिक कान में लगाए होते हैं, म्यूजिक के साथ वॉक करते हैं, तो वो ठीक है या नहीं ठीक है? वो बिल्कुल गलत है। वो अपने मन को, चूंकि उनका मन कंट्रोल में नहीं है, वो मेडिटेशन नहीं किया उन्होंने वॉक का और रन का। अगर वो किया होता तो इसकी जरूरत नहीं थी। वो सहारा ढूंढ रहे हैं, तब तो आप फिर वो लेकर के चलो सपोर्ट के लिए छड़ियां ले लो, कुछ और तरीके के वॉक हाँ, होती है। क्योंकि कंसंट्रेशन तो आपका वॉक पे नहीं हुआ ना, आपका म्यूजिक पे हुआ। तो बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल क्वेश्चन मैं प्रोफेसर, स्टार्टिंग आप में आपसे बिल्कुल ठीक बात कह कर रहे हैं। रहे थे तो मुझे लगा कि मैं ये भी क्वेश्चन पूछूं कि मोस्टली मैं देखती हूँ लोग एयरफोन लगा के और वॉक करते हैं, तो वो ठीक है या नहीं ठीक है? बिल्कुल गलत आपने है। कितनी किसी भी जी सपोर्ट को साथ नहीं लेना है, रोज प्रयास करना है, लगातार प्रयास करना है। इसमें कम से कम 100 दिन लग जाएंगे आपको अपनी बॉडी को आदत में ढालने के लिए। बॉडी की आदत बदलनी है तेज वॉक की या रनिंग की, ना कि हमने रनिंग सीखना है या हमें तो रनिंग आता है या लोगों को दिखाना है कि, और हमने म्यूजिक गाना सुन रहे हैं और दौड़ रहे हैं। गाना सुनते हुए आप दौड़ ही नहीं सकते, आप बॉडी को सिखा ही नहीं सकते। आप फिर तो बॉडी गाना सुन रही है। आप अपने ब्रेन को, आप अपने मानस को बताइए कि आप कर क्या रहे हो। आप अपने हाथ, घुटने, नजर रखिए घुटनों पर, चेहरे पर कहीं भी पेन हो, अनड्यू प्रेशर नहीं दीजिएगा, रुक जाइए, स्लोली चलिए, घर आ जाइए। पूरी लाइफ पड़ी हुई है सीखने के लिए रनिंग, आराम से सीखिए, बॉडी को चेंज कर लाइए, बॉडी को सिखा दीजिए। मैंने अपनी बॉडी को सिखाया है, खुद नहीं सीखा है, बॉडी को सिखाया कि हाउ टू लर्न, दैट्स इट। बिल्कुल, जब आपने इस एज में इतना स्टार्ट कर लिया तो मुझे लगता है यंग जनरेशन तो बहुत कुछ सीख सकती है, कर सकती है। सो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा जी। बहुत जी, शुक्रिया। तो चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। मेरे पास ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है समराइज करते हुए भी, क्योंकि सतीश सक्सेना जी ने जिस तरह से चीजों को बताया है, वो हम लोग कम्युनिकेशन की दुनिया में सब काम करते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने यही होता है कि हम जिस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं वो रिसीवर तक पहुंच जाए, इफेक्टिवली पहुंच जाए। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा तरीका अच्छा नहीं होगा जो सतीश सक्सेना जी ने जिस तरह से चीजों को बताया, और जो हम सब के लिए जो लर्निंग की बात है कि सहजता के साथ काम करना। इससे पहला भी सेशन हमारा जो वाइब्रेंट इंडिया सीरीज में हुआ था, जिसमें हमने एनएसडी रिपीटरी के जो चीफ हैं राजेश सिंह, उनको बुलाया था, और उन्होंने भी एग्जैक्टली यही कहा था कि वो इतनी यंग एज में एनएसडी रिपीटरी के चीफ तक पहुंच गए, बाहर भी पढ़ने चले गए, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने बड़ा जो इंटरव्यू फेस किया, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, हिंदी में किया, बट जो था सहज भाव से किया, और वो लोगों को अपील किया कि ये व्यक्ति इस काम को कर सकता है। तो सबसे बड़ी लर्निंग लगातार 2 सेशंस में, और आई थिंक कि स्टूडेंट्स ने इस बात को नोटिस किया होगा कि आप बहुत ही सहज तरीके से, आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अगर काम करेंगे। और जो एक अभी सतीश जी ने बात की, उस दिन भी ये बात हुई थी कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, निरंतरता बहुत जरूरी है। जल्दी जल्दी में देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। तो आपको कोई भी काम आप कर रहे हैं, आपको बहुत लंबा समय लगेगा, महीनों लगेंगे, सालों लगेंगे, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है, जो निरंतरता है, वो होना बहुत जरूरी है। और जो जैसे सतीश जी ने ईमानदारी की बात की, ईमानदारी मतलब आप उस ऑनेस्ट रहें जो काम आप कर रहे हैं। जो अभी जैसे रनिंग की बात हुई कि आप उस समय दूसरा काम नहीं करें, तो वो ऑनेस्टी है। आप जो काम कर रहे हैं वो ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑनेस्टी
ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं तो वो ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है। और हर एक को, जैसा सतीश जी की पूरी लाइफ है, वो जीवंत तरीके से जीवन को जीने की कोशिश करनी चाहिए। जो सतीश जी ने कहा कि ये मरना तो सभी को है, लेकिन वो मतलब करड़ करड़ के नहीं मरना है, वो एक अच्छे तरीके से जाना है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी लाइफ को शुड ट्राई टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, वो बहुत जरूरी है। तो सतीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम कार्यक्रम की समाप्ति से पहले आपसे जरूर कुछ सुनना चाहेंगे। दौड़ा के तो हम कार्यक्रम में देख नहीं सकते, लेकिन कविता जरूर सुन सकते हैं इस कार्यक्रम में। और खासतौर से मैंने आपकी बहुत सारी कविताएं पढ़ी हैं, और जो माँ के ऊपर आपने कविता लिखी थी वो बहुत ही मार्मिक थी। अगर आपको याद हो तो आप उसकी कुछ पंक्तियां सुना सकते हैं, या जो भी कविता आप चाहें वो हम सुनना चाहेंगे अंत में। डॉक्टर अमरीश, मैंने जीवन में कभी भी कवि सम्मेलन में नहीं किया। बहुत से इनविटेशन आते हैं, मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया। मैंने अपने किसी दोस्तों की गोष्ठी में बैठ करके भी कविता कभी नहीं सुनाई। आदत एक अजीब सी है कि अपने लिखे को खुद ही क्या अपनी तारीफें करना। तो मुझे अपनी कोई कविता 350 रचनाओं में एक भी कविता याद नहीं है। मैं आपको इसकी थोड़ी बैकग्राउंड बता देता हूँ, क्योंकि माँ की डेथ मैं बहुत छोटा था जब हो गई थी, 2.5 साल का था। तो माँ से एक अलग से मेरा एक प्यार और वो है, और तड़प उठती है। मैं अपनी कविताएं खुद कभी सुनाता नहीं, खास तौर पर माँ पे लिखी हुई, क्योंकि मेरा दिल भर जाता है, क्योंकि दिल से लिखी है कविताएं। तो मैं आपको वो कुछ लाइनें सुनाने की कोशिश करता हूँ। माँ, तुझे वापस बुलाना चाहता हूँ, माँ तुझे वापस बुलाना चाहता हूँ, एक असंभव गीत गाना चाहता हूँ। माँ तुझे वापस बुलाना चाहता हूँ, एक झलक तेरी मुझे मिल जाए तो, एक झलक तेरी मुझे मिल जाए तो, एक कोरा ही खिलाना चाहता हूँ। माँ तुझे वापस बुलाना चाहता हूँ। मुझसे हो नाराज, नाराज मतलब 2.5 साल में चली गई छोड़ के। मुझसे हो नाराज, मत मिलना मुझे, अपने बच्चों से मिलाना चाहता हूँ। जानता हूँ अब न तुम आ पाओगी, सिर्फ सपने में बुलाना चाहता हूँ। जाने कितनी बार ये रुक रुक बहे, माँ मैं आंसू को जिताना चाहता हूँ। देख तो लो माँ कि बेटा है कहाँ, तेरा घर तुझको दिखाना चाहता हूँ, तेरा घर तुझको दिखाना चाहता हूँ। बहुत दिन से चल रहे हैं बिन रुके, आज दिनकर को बिठाना चाहता हूँ। बहुत दिन से चल रहे हैं कुछ असंभव करके, काश माँ की एक बार शक्ल ही दिख जाए। और डॉक्टर अमरीश, मेरे पास उनका फोटो भी नहीं है याद के लिए। तो माँ मेरे लिए मेरे दिल के टुकड़े हैं, कहा है जो आंसू बह के निकल जाते। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। और आपने इतना टाइम दिया, विदेश में रहते हुए आपने सुबह सुबह समय निकाला, और हमारे छात्रों को और सभी लोग जो इस सेशन में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया आप सबके लिए, और डीएमई के लिए मैं आभार हूं कि उन्होंने मुझे चांस दिया और इतने सारे विद्यार्थियों के बीच में मुझे पहुंचाया। The first impression that comes to our mind about any college: tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects. Nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world. Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here.